मेरी सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक 11 साल के बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वह गीता के सूक्ष्म अर्थों को जाने, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अब एक छोटे से बच्चे जो अभी 11 साल का ही है, उसे गीता के अर्थ समझाने जा रही हूँ। इस मन के चक्रव्यूह में फंसी यह चेतना किस प्रकार मुक्त हो, यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आइए इस बच्चे के साथ में मैं ये गीता शुरू करती हूँ। गीता का प्रथम अध्याय, आइए सुनते हैं। Of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Text 2. Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. Text 3. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. Text 4. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjun. Great fighters like Yuyudhana, Virat, and Drupad. Text 5. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kasiraj, Purujit, Kunti Bhoj, Saibya. Text 6. There are mighty Yadhumanyu and the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. Text 7. But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. Text 8. There are personalities like you, Bhishma, Karn, Kripa, Ashwathama, Vikarn, and the sons of Somdatta called Bhuriseva, who are always victorious in battle. Text 9. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and are all experienced in military science. Text 10. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by the grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas, carefully protected by Bhishma, is limited. Text 11. All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entry into the phalanx of army. Text 12. Then Bhishma, the great valiant, is a grandsire of the Kuru dynasty. The grandfather of the fighters blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of lion, giving Duryodhan joy. Text 13. After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and combined sound was tumultuous. Text 14. On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. Text 15. Lord Krishna blew his conch shell, called Panchajanya. Arjun blew the Devdatta, and being the ferocious eater and performer of Herculean tasks blew his terrific conch shell called Pondra. हाँ, बस एक मिनट। अब अपना भी पहले 15 तक का जो है थोड़ा सा इसका ब्रीफ करो। तो थोड़ा सा ब्रीफ करो कि ये फर्स्ट जो श्लोक था, तो इसमें जो धृतराष्ट्र कौन थे और संजय कौन थे, ये सब बताओ। अच्छा, तो धृतराष्ट्र शांतनु के बेटे थे। शांतनु के दो वाइफ थी, उनमें से गंगा थी और एक वाइफ थी जिससे पांडु हुए थे और धृतराष्ट्र हुए थे। ये जन्म से ही अंधे थे धृतराष्ट्र। और जो गंगा थी उनसे उनको भीष्म पितामह हुए थे। हाँ, बिल्कुल तो करेक्ट। संजय जो थे वो सॉरी धृतराष्ट्र के सारथी थे। हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और इस ये जो है, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो संजय से क्या पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। हाँ, और कुरुक्षेत्र में किस लिए हुए थे? क्या क्या हुआ था? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में किस लिए इकट्ठे हुए थे सब? क्या कहते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, तो धर्म की लड़ाई किस लिए बोली जाती थी इसमें?
क्योंकि वो मतलब अपने धर्म के लिए लड़ी गई थी। धर्म क्या चीज होती है? धर्म किस उसका नाम है? धर्म को कैसे डिफाइन करोगे? धर्म धर्म वो है कि मेरे को वो मतलब कॉन्शियसनेस हासिल करनी है, वो धर्म है मेरा। क्या धर्म है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पे जो आकर जब आप कॉन्शियसनेस के हिसाब से जब आप लेते हैं और फिर बाहर में आप जो भी कुछ करते हैं ना, तो उसमें बाहर में आपका कोई सेल्फिश मोटिव से जो भी आप काम कर रहे हैं ना, तो वो धर्म नहीं अधर्म होता है। अब जहाँ पर आपका सेल्फिश मोटिव खत्म हो जाता है तब आप धर्म में सेटल हो जाते हैं। सेल्फिश हाँ मोटिव के बिना, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, व्हेन यू डू समथिंग, देन यू आर एस्टेब्लिश्ड इन धर्मा। हाँ तो जिसकी जो चीज है उसको वहां उसको वो चीज दे दो, अपने पास में ना रखो किसी की कोई भी चीज। तो ये चीज जो होता है धर्म होता है। ठीक है। हाँ तो हाँ अब उसमें लेकिन ये क्या होता है, जैसे माइन्यूट पॉइंट पर जब करी जाती है तो कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर मैं कंप्लीट हूँ। ये बॉडी जो है मेरे को एज एन इंस्ट्रूमेंट है और एक कार की तरह है, इसको मेरे को ड्राइव करना है। इसके जो हाँ मन बुद्धि और ये जो सब है ना, इंद्रियां इंद्रियां होती हैं, जैसे आंख नाक कान, इन सब से हम जो टोटल जो वर्ल्ड है उसको परसीव करते हैं। अब परसीव हम्म, करते हैं तो जो भी हम परसीव करते हैं तो वो सारी जो जो कर रहा है वो हमारी ये बॉडी सब चीजें देख रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अब जो जो सॉफ्टवेयर के मतलब जो हार्डवेयर के थ्रू जो अंदर जा रहा है तो वो सॉफ्टवेयर बन गया। अब सॉफ्टवेयर को मैं कैसे ऑपरेट करती हूँ? सॉफ्टवेयर क्या है? मैं अपने आप को, कॉन्शियसनेस को, यदि मैं भूल जाऊं और जो मेरे अंदर जो चीज आई है मैं उसको सच मान लूं, तो और वो है क्या? वो फॉल्स है। वो हाँ फॉल्स है। तो फॉल्स को मैं मान लेती हूँ मैं, कि मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, मैं मशीन मशीन को मैं मान लिया, और जबकि हाँ मशीन में नहीं थी। तो जब जब ये वाला चीज जब मनुष्य भूलता है, ह्यूमन बीइंग भूलते हैं, बाकी दूसरी जो स्पीशीज है उनमें फैसिलिटी नहीं होती कि वो ये चीज सोच सके, क्योंकि उनका जो केंद्र होता है लाइफ का, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट उनका लाइफ का प्रकृति होती है, मतलब ये जो नेचर, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, तो मटेरियल के हिसाब से जीते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये बुद्धि से अपने आप को अलग कर सकती है। बुद्धि होती है ना, ह्यूमन बीइंग में होती है ये बुद्धि। तो ह्यूमन जब डिसीजन जब सही सेंटर से लेता है, जो कॉन्शियसनेस वाले सेंटर से लेता है, तब उसका डिसीजन वो ठीक करता है। अब वो भूल जाता है कभी, वो ऑपरेट करने लगता है मटेरियल से, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो अब इस कारण जो ये युद्ध की भी और ये जो बाहर की जो सिचुएशंस जो अराइज होती है ना हमारी, क्योंकि हम पकड़ लेते हैं बाहर की चीज को, हमारा मन पकड़ लेता है, और फिर मन के अकॉर्डिंग हम मूव करने लगते हैं। तो जैसे ही हम मन के अकॉर्डिंग मूव करने लग जाते हैं तो हम मन के बन जाते हैं, हम मन के अंदर कैद हो जाते हैं। उसको क्या हाँ बोलेंगे, स्लेव हो जाते हैं, मन के स्लेव हो हाँ जाते हैं। अब उसको हमें मन से, अपने ही मन से लिबरेट होना है, तो उसको लिबरेशन कहा जाता है, अपने ही मन अच्छा से लिबरेट होना। तो मन क्या चीज है? मन हो गया सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होगी बॉडी, और मैं जो कॉन्शियसनेस हो गई उनको ऑपरेट करने वाली। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। तो अब हम्म, इसमें अब ये बताओ कि ये तो सब था। हाँ, अब इसमें तो ये बस अब ये दुर्योधन बता रहे थे। दुर्योधन ने दोनों सेनाओं में कौन कौन से ने किस किस में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करा, ये चीज बता रहे हैं। और जो इनके जो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने इसको ये जो सामने सेनापति की तरह से वो ऑपरेट करते कौरवों की सेना को, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। और बाकी जो इसकी जो दूसरी जो पांडवों की जो सेना थी उसके बारे में बताया। और एक मैंने आपको हम्म, बताया था उसका जो ये शंख का मतलब। तो ये हाँ। शंख का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? शंख का मतलब था अंदरूनी आवाज। अंदरूनी आवाज। तो अंदरूनी आवाज क्या होता है? जैसे अब हमें जो बाहर की जो साउंड जो दिखाई देती है ना, चाहे हम कुछ भी जो बोलते हैं करते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन वो आ रही तो हमारे मन से है ना। हाँ मन एक हमारा एक शंख की तरह है। उसमें ध्वनि, जैसे हमारे मन में जो चीजें चल रही होती है उसके हिसाब से ध्वनि निकलती है बाहर। अब जैसे हाँ मैं गुस्से में हूँ तो मेरे अंदर से बाहर में बिल्कुल क्रोध वाली वाणी होगी, जिससे दूसरे को भी पता चल जाएगा कि मैं गुस्से में हूँ। तो हाँ वो दिखने में बाहर से गुस्सा तो दिख रहा है, लेकिन वो आ कहाँ से रही है? वो मन के अंदर से आ रही है ना।
मन में हाँ आ रही है, क्योंकि हमारे मन में जैसे अब किसी आपके साथ भी स्कूल में यदि बच्चे कोई गलत बिहेवियर कर देते हैं, या कोई टीचर किसी को ज़्यादा अप्रिशिएट कर देती है, किसी बच्चे को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देती है, तो हाँ इसमें जो मन में एक बच्चे के भी ये चीज़ पैदा हो जाती है ना कि टीचर उसको एप्रिशिएट कर रही है, उसको ज़्यादा चाहती है। तो ऐसी वाली जो भावनाएँ होती है ना हमारे अंदर, हम हमारे अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है। बॉडी से आती है ना, क्योंकि बॉडी हमारा जो मेन जो वो था, मतलब कारण जो था, ये जो थॉट बनने का, वो थॉट बनने का कारण बॉडी था। अब ये जो बॉडी है, अब बॉडी से बियॉन्ड हम कैसे जाएँगे? तो वो जब जब हम मन से लिबरेट होंगे तो हम ये देखेंगे कि टीचर जो भी कर रही है या नहीं कर रही है, वो उसकी अपनी जर्नी है। लेकिन मेरी जर्नी क्या है कि मैं अपने ऊपर जो मेरी अपनी इंद्रियाँ, जो भी चीज़ें, जो दृश्य, जो भी सीन्स जो मेरे माइंड में लेकर आ रही हैं, तो उस पे हम्म मेरा पूरा कंट्रोल हो कि क्या चीज़ मुझे लेनी है और क्या चीज़ मुझे छोड़नी है। हाँ अब क्या होता है कि मेरा मेरा कंट्रोल नहीं रहता ना। मैं कहती हूँ कि मेरे को किसी ने बोला कुछ चीज़, तो मैं फ़ौरन जो है रोने बैठ जाती हूँ। तो रोने बैठ जाती हूँ, तो वो यानी कि मेरा अपने ऊपर माइंड पे मेरा कंट्रोल नहीं है ना। मेरा माइंड ने जो चीज़ ली और मैंने उसके साथ में मैं मर्ज हो गई और मैं अपने आप को हाँ भूल गई। हाँ तो ये गलती बार-बार जो है ह्यूमन बीइंग करता है। और वो क्या अच्छा होता है, ज़्यादातर 99.9% लोग इसी तरीके की लाइफ़ जीते हैं, और वो अपनी इस जो अपॉर्च्युनिटी थी इससे फ्री होने की, मन से फ्री होना, मतलब डेथ एंड बर्थ के बियॉन्ड जाना। क्योंकि उसका तो कोई डेथ और बर्थ नहीं है ना, कॉन्शसनेस का कोई डेथ और बर्थ नहीं है। हाँ कॉन्शसनेस ये तो हमेशा है, हाँ हमेशा एग्ज़िस्ट करती है वो। अब हम हाँ मान लेते हैं जो शरीर जो कर जाता है, हम उसको मान लेते हैं कि मैं मर गया। मैं नहीं मरता, वो हम्म कॉन्शसनेस हमेशा रहती है, क्योंकि लेकिन हमने उसको टेस्ट नहीं किया। हम टेस्ट नहीं करते ना, उसको टेस्ट नहीं, क्योंकि जो जो बॉडी चली जाती है, जो जो बॉडी के थ्रू जो बोल रहा होता है, वो जब बॉडी बॉडी जब एक्ट नहीं कर रही होती, तो हम समझते हैं वो चला गया, लेकिन वो गया नहीं होता, वो होता है, वो एग्ज़िस्ट अच्छा करता है। तो वो होती है आत्मा, सोल हम्म सोल होती है वो हमारी, ठीक है? तो हम्म ऐसा ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ जो ये जो जितना भी हम सारा जो चीज़ खेल जो देखते हैं ना बाहरी तौर का, तो वो सारी चीज़ें हमारे कहाँ से आती है? सीड इसका कहाँ होता है? मन में। मन ही हाँ मन ही में ही सीड सीड पैदा होता है ना हर चीज़ का हमारा। क्योंकि हाँ कॉन्शसनेस तो देखने वाली है उसको, ऑपरेट हाँ करने वाली है, तो फिर कॉन्शसनेस का कोई रोल ही नहीं है। वो मन हाँ के सीड को देखती है, मन जो है मैनिफेस्ट करके जो है चीज़ें जो है बॉडी के थ्रू करता है। तो लेकिन अब क्या होता है, मन जब हमारा आत्मा की तरफ जब जब पीस चाहता है मन, हमेशा कहता है मैं पीस में चला जाऊँ, तो वो क्या कहता है कि जो भी वर्ल्ड से मेरे को जो भी कुछ आ रहा है, तो मैं उसको जो है मेरे को नहीं उस पे रिएक्ट करना, मेरे को जो सही लगता है मैं वो करूँगा। तो उसकी जो अपनी अंदर की जो माइंड की जो स्टेबिलिटी है ना, वो बनती चली जाती है। और जितना माइंड स्टेबल होता चला जाता है, स्टेबिलिटी माइंड की होना मतलब आत्मा में आप मर्ज होते जा रहे हो। क्योंकि हाँ आत्मा तो कभी भी विचलित नहीं होती ना, वो हाँ कभी भी परेशान नहीं होती, हाँ वो परेशान नहीं होती, कॉन्शसनेस कभी, लेकिन जब तक कॉन्शसनेस मन के साथ अटैच है, तो वो बार-बार परेशान होती है मन को देख के। तो जब जैसे-जैसे हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती चली जाती है, तो हाँ ये मेन जो गीता का पर्पस ये है कि जो ह्यूमन बीइंग जो लाइफ जो जीते हैं ना, जो हाँ ह्यूमन बीइंग जो लाइफ जीते हैं, वो करंट में भी एक मेडिटेटिव लाइफ जिएँ, मतलब अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो। तो तब आप उस हर मोमेंट को जो है एक एन्जॉयबल तरीके से आप जी सकते हैं। आप उसमें बिन रोएँगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, कुछ नहीं। क्योंकि जो बाहरी वर्ल्ड से जो भी कुछ आप ले रहे हैं, तो आपका पूरा होल्ड है अपनी बॉडी पर कि आप नहीं लेंगे। आपको जो सही लगेगी चीज़ आप वही करेंगे। जो हम्म ऐसे-ऐसे करके हम छोटे-छोटे बेबी स्टेप उठाते हैं पहले, फिर धीरे-धीरे हमें हम्म आदत पड़ जाती है वैसे। हमें बाहर के वर्ल्ड को बाहर ही छोड़ना है पहले। उसमें से क्या चीज़ लेनी है, जैसे आपको 10 खाने पड़े हैं आपके सामने टेबल पे, लेकिन आपको जो चीज़ पसंद है आप, ये नहीं ना कि आपका मन चल गया और पता चला वो फूड आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो आप नहीं लेंगे ना वो। तो इस प्रकार की कंट्रोल जो जब मनुष्य करने लग जाता है ना, तो इस प्रकार हम्म से हम फिर वो लिबरेट वाली सिचुएशन में हम जाने लगते हैं। तो एक-एक, एक-एक, 2-2 स्टेप लेते जाओ, और बार-बार इस अवेयरनेस में आना पड़ता है कि हम कॉन्शियसनेस है, हम बॉडी नहीं है। बॉडी हम एज़ अ टूल की तरह से इस्तेमाल करेंगे बस। और हाँ बॉडी में जैसे अब आपकी कार है, कार में आपने डीज़ल भरवा दिया और आपकी भरती थी उसमें पेट्रोल, तो गड़बड़ हो जाएगा ना काम। ऐसे हमें बॉडी का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम इस बॉडी में हैं, तो यदि बॉडी में दिक्कत आती है, तो हमें भी दिक्कत आती है ना, परेशान होते हैं। तो हाँ बॉडी को वही आइटम्स दें जो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। इसी प्रकार मन को भी वही डोज़ देनी है जो हमारे को आत्मा में प्रतिष्ठित करे, मतलब आत्मा में हमें मर्ज करे।
वो चीज़ देनी है हम्म, मन को हमें लेनी ही नहीं है ना बाहर से कोई भी चीज़, खराब चीज़, कोई बुरा कह रहा है, अच्छा कह रहा है, कुछ हमें लेना-देना नहीं है। कोई किसी को एप्रिशिएट कर रहा है, कोई किसी का फ़ेवर कर रहा है, हमें लेना-देना नहीं है किसी से भी। हाँ, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना है। तो ये इंडिविजुअल जर्नी होती है, इसमें कोई आपस में कोई भी किसी का फ्रेंड नहीं होता इसमें। कोई हाँ, हो ही नहीं सकता, इवन माँ-बाप भी नहीं हो सकते। वो सिर्फ़ एज़ अ बॉडी जो है चाइल्ड की केयर टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का साथ नहीं दे सकता कोई भी। कॉन्शसनेस एक ही होती है। कॉन्शसनेस क्या है? थॉटलेस वाली जो कॉन्शसनेस है वो हमारी सबकी एक है। तो उसमें जाकर जब तक हम मर्ज नहीं होते ना, तो तब तक उसमें कोई संगी साथी नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आपके अंदर नहीं आएगी। क्या पता बड़े से ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर हो। क्योंकि इनोसेंस है अभी और बाहर वाले जो जो दूसरे जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग मैनिपुलेशन ये सब जो चीज़ें करते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको ना संसार में सारी चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो हम्म, उसके कारण एक-दूसरे को परेशान करते हैं। तो कई बार होता है कि जैसे बच्चा जो है वो भगवान को पा लेता है बजाए बड़े के, क्योंकि बड़ों में वो इनोसेंस नहीं आ पाती है, तो ऐसा होता अच्छा, है। तो ये चीज़ जो है ये सारा जो शंखनाद का जो बताया था ना भगवान ने, तो ये शंखनाद सबने अलग-अलग बजाए क्योंकि सबकी मेंटालिटी अलग है, तो सबके शंखों के नाम भी इसमें अलग-अलग, अलग-अलग बताए गए। ठीक है? अच्छा, हाँ। ये टोटल बस यहाँ तक तो इतना ही था और अब जो है ये चलो पढ़ो फिर, पढ़ो, आगे पढ़ो। Text 16 to 18. हुँ। King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell. The Anant Vijay and Nakul and Sahadev blew the Sugos and Mani Pushpaka. The great Arker, the king of Kasi, the great fighter Shikandi, Drishtadyumna, Virat and the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi and others. O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. हाँ, तो ये इसमें ये बताओ ये अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु क्या कहते हैं एक मतलब बहुत अच्छे फाइटर थे जो कि चक्रव्यूह में घुस गए थे। हाँ, तो चक्रव्यूह क्या होता है ये उसके थे भांजे थे ये उसके कृष्ण के। कृष्ण के अच्छा, भांजे थे क्योंकि जो उनकी जो वो थी बहन थी उससे अर्जुन की शादी हुई थी। तो ये उसके भांजे थे अभिमन्यु और बहुत अच्छे सारथी वो थे युद्ध में लड़ने वाले। लेकिन अब इसमें कहते अभिमन्यु कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे या फिर पांडवों की? पांडव की तरफ से क्योंकि अर्जुन था ना, अर्जुन तो फादर थे ना उसके। अच्छा, तो नेचुरली वो पांडवों की तरफ से ही लड़ेंगे। तो जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। हाँ, तो द्रौपदी के भी पाँचों पुत्रों की तो द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की तो डेथ हो गई थी। वो उसमें अश्वत्थामा ने मार दिया था ना। हाँ, अश्वत्थामा ने लास्ट डे में उसने जो पांडव समझ के पाँचों को आग से जला दिया था। तो पाँचों अच्छा, पाँचों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी द्रौपदी के। तो एक तो द्रौपदी भी थी अर्जुन की वाइफ और एक सुभद्रा भी थी। सुभद्रा जो है कृष्ण की बहन थी। अच्छा, ठीक है? तो ये उसमें ये बता रहे हैं तो इन्होंने जो क्या करा था ये जैसे ऐसे स्टोरी अभिमन्यु के लिए आती है कि जैसे वो सुभद्रा जब प्रेग्नेंट थी तो जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे, तो तब जो है हम्म। उन्होंने जो वो अर्जुन जो है युद्ध में प्रवेश करना सिखा रहे थे, युद्ध में एंटर करना। तो तो एंटर यानी कि करना मतलब क्या कहते हैं अभिमन्यु के फादर थे अर्जुन। अर्जुन हाँ, तो अर्जुन सुभद्रा को स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे जो है युद्ध में प्रवेश किया जाता है मतलब चक्रव्यूह के अंदर। तो कहते हैं कि चक्र वो फिर उस टाइम में कह रहे हैं आधी स्टोरी सुनते-सुनते सुभद्रा सो गई। सुभद्रा सो अच्छा, गई तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना आया। तो ये चीज़ उसने अपने जन्म से पहले ही सीखी हुई थी। तो जन्म से पहले सीखी हुई का मतलब ये नहीं है, पता है क्या है? जैसे मैं अब इसको थोड़ा-सा एक सटल लेवल पर बता रही हूँ तुम्हें। कि हाँ, जैसे ऐसा नहीं होता जैसे जब हम पता चल जाता है ना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा मित्र है, तो कौन मित्र हुआ जो जो हमें आत्मा में मर्ज करे वो हमारा मित्र हुआ, रियल मित्र। अब हम हम्म, आए कहाँ से हैं, हम आए आना और जाना किसका है? आना-जाना तो शरीर का है ना, हम तो कहीं आते-जाते हैं नहीं। कॉन्शसनेस हाँ, तो कहीं आती-जाती नहीं ना, ये बॉडी ट्रैवल करती है। जैसे गाड़ी ट्रैवल करती है तो आप थोड़ी ना कहेंगे गाड़ी एक हम्म, जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसमें आप थोड़ी ना ट्रैवल करें, आप तो गाड़ी में ही थे। ट्रैवल तो गाड़ी ने किया ना, आप हाँ, तो कहीं नहीं आए गए। तो इस हाँ, प्रकार से ये जो चीज़ होती है ना, ये सटल लेवल पर ये कही जाती है, जैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना मतलब जैसे संसार में तो आ गए, अब संसार को चलाना कैसे है, चलना कैसे है इसमें, ये चीज़ नहीं पता चली।
मैंने बताया था अच्छा। ना, एक मशीन का उदाहरण दिया था आपको मैंने कि एक हाँ। मशीन जैसे है, ऑपरेट करनी, आपने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा और उसको ऑपरेट करने लगोगे तो खराब ही करोगे ना मशीन। ऐसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है कि हम हैं कौन, और हम हैं कौन, और हम इस जो बॉडी है, जो हमारी जो मशीन, इसको हमें समझ नहीं आता कैसे ऑपरेट करें। सब हाँ। अलग-अलग जो है सब चीज़ें भागती हैं, और उनके उनके अकॉर्डिंग, उनसे हम कंट्रोल्ड होते हैं। कोई चीज़ देख ली, बाहर मूवी देख ली, उसमें बैठे रह गए, हमें पता ही नहीं अपना। तो ये चीज़ नहीं पता होती ना हमारे को, तो जब हमें अपना पता चलता है कि हम सेल्फ हैं कौन, तो तब हम इसको, मशीन को ऑपरेट करने के लिए वो होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नहीं तो क्या होता है, मशीन ही हमें ऑपरेट कर रही होती है। उल्टा चलता है ना हमारा, उल्टा हाँ। चलता है। तो ये चीज़ जो है उसमें मतलब ये हो जाता है कि इस बॉडी में चक्रव्यूह, मतलब बॉडी का ही समझ लो कि चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर लिया, अब इसको कैसे हमें निकलना है बाहर, इससे बॉडी से कैसे बाहर निकलना है, ये हमें नहीं पता। क्या चीज़ हाँ। चक्रव्यूह हुई? मन। मन हाँ। चक्रव्यूह हुआ। मन चक्रव्यूह में प्रवेश, मन मन क्योंकि जहाँ पर सीड पैदा होते हैं। तो सीड क्या होता है? सीड की कोई मैंने इच्छा रखी थी अपनी, इस कारण वो सीड मेरा मन का पड़ा हुआ था, तो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गई मैं, अब मुझे निकलना नहीं आ रहा है, इस बॉडी से बाहर कैसे मैं निकलूँ? क्योंकि बॉडी अच्छा। में जिसने ये समझ लिया कि ये केज है, तो तभी तो वो उसके लिए वो करेगा ना, एफर्ट करेगा ना। अब हम हाँ। कोई केज मानते ही नहीं इसको, अच्छा। जो केज मान ही नहीं रहा वो क्या क्यों एफर्ट करेगा? अभी उसको पता ही नहीं है ये चीज़। और ये आपका, आपको तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत लोग होंगे, जो बड़े जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होती ये चीज़। हाँ। ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सभी को ही नहीं पता होती। बहुत 1-2 जने होते हैं तुम्हारे जैसे जिनको पता चलती है ये इतनी जल्दी। और जितनी जल्दी ये चीज़ पता चल जाती है, उतना आप जो है फ्री होने के हिसाब से, और उतने कर्म में जो प्योरिटी होती है ना, जैसे हमने किसी को दे दिया, कर दिया, तो हम सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा कर दिया। ऐसा नहीं होता। यदि आपने किसी गलत को दे दिया, तो आप उसमें बाकायदा, जैसे आपने किसी को पैसे दिए और उसने पैसे का मिसयूज़ कर उसने लिया। पैसे का कुछ गलत यूज किया तो फिर वो हमको पक्का हम चढ़ेगा बुरा। हाँ, आप भागीदार हो गए ना, पार्टिसिपेट कर लिया आपने उसके साथ। हाँ। हाँ, बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें तो। बहुत जल्दी पता चल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये पढ़ो अब, कौन-सा पढ़ना है? 20 हाँ। हाँ। Text 20. हुँ। At that time, Arjun, the son of Pandu, sitting on chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. हाँ, Text 21 to 22. हाँ, 23rd तक पढ़ो आप। O Arjun said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend this in this trial of arms. Text 23. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. हाँ, अब इसमें अर्जुन ने क्या बोला था उनको? कृष्ण को क्या बोला? अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि हे अच्युत मतलब मेरी बग्घी को दोनों दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ क्योंकि मुझे देखना है कि कौन कौन मुझसे मतलब लड़ने आया है जो कि मतलब दुर्योधन को मतलब वो करना चाहता है। हाँ, दुर्योधन को, मतलब उसको वो हेल्प करना चाहता है, मतलब दुर्योधन हाँ की मतलब हेल्प करना चाहता है। प्रसन्न करना चाहता है। हाँ, तो वो कह रहा है मैं ज़रा देख लूँ, कौन जो है, मतलब इसका जो खुद ही जो मतलब गंदा है, जो इंसान है, जो दूसरों का भी लेके हड़पा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए भी जो लोग तैयार खड़े हैं, तो वो भी तो खराब ही हुए ना फिर। जो हाँ। गलत का जो साथ दे रहे हैं, तो वो भी गड़बड़ी हुए हुए हैं। पीछे तो ये कह रहे हैं मैं उन सबको मैं देख लूँ। हाँ, हाँ। बोलो। Text 24. Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. हुँ, पढ़ो। Uh, Text 25. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, Just behold past all the Purus assembled here. Text 26. There Arjuna could see, within the midst of armies of both parties, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. तो वो अब अर्जुन सबको देख रहा है अब, कौन-कौन पार्टिसिपेंट हैं इसमें, दोनों हाँ। तरफ से, है ना? और हाँ। पढ़ो, और पढ़ो। Text 27. When the son of Kunti, Arjun,
all these saw different grades of friends and relatives. He became overwhelmed with compassion and spoke thus. हाँ, तो वो कह रहे Next हैं कि conclude. ये कंपैशन से जो है वो देखकर परेशान से हो गए, देखकर हाँ कि अब हाँ, क्या था उनके अंदर, परेशान किस लिए हो गए थे? क्योंकि उनके सारे जितने भी रिश्तेदार थे, मतलब दादा परदादा सब उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो थे। हाँ, तो वो क्या था उनके, वो परेशान इंसान किस लिए होता है? क्योंकि उसको ना याद आ जाती है हाँ, किसने जिसके साथ जो जैसा टाइम स्पेंड किया होता है, तो वो मतलब टाइम जितनी भी मेमोरी होती है वो मन में घूम जाती है। हाँ, वो मेमोरी घूम जाती है सारी। ठीक है, पढ़ो। Text 28. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Text 29. My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandhi is slipping from my hand, and my skin is burning. Text 30. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of Kasi demon. Text 31. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, or nor can I. My dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. हाँ, एक मिनट। अब इसमें ना ये यही चीज बोल रहे हैं कि ये ना जैसे अब उसने अब उसमें ना ये चीज बोल रहे हैं, जैसे अब उसने जो सामने वो देखा ना, सीन देखा। अब हाँ, उसने सीन देखा सारे, उसमें उसके माइंड में मेमोरी घूम गई। अब मेमोरी घूमने के बाद तब में वो उन सबको अब ये मारने के देखो। लिए हिचकिचा रहा है। हाँ 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 हाँ, तो उसका जो आप ये देखो, अब उसने बाहर से ऐसा नहीं है कि उसको कोई भूख लगी है, प्यास लगी है, या उसको सन से उसकी स्किन जलने लग गई। उसकी स्किन किससे जलने लगी? उसकी स्किन जलने लग गई, उसका डर 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 से। डर से जलने लग गई। तो डर से नहीं, डर से भी नहीं हुई है, इमोशनल हो गया वो। हाँ, मतलब उसको लगा कि मैं इनको मार के क्या ही करूंगा, ये सब तो मेरे रिश्तेदार हाँ, हैं। तो जो थॉट्स है, मतलब थॉट हमारे ऊपर बाहर के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हाँ करते हैं ना? हाँ हाँ, तो जैसे हम कोई मूवी देख लें, बहुत डरावनी सी मूवी देख लें, तो हमारी बॉडी पे उसके वो दिखने लग जाते हैं ना सिम्टम, हाँ। बॉडी पे। अब जैसे हमने कोई सपना ही देख लिया और हमने कुछ हम्म। करा है नहीं उसमें, हम उठे भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन हाँ फिर भी हम जो है सपने में डरते हैं, तो हमारी बॉडी जो है मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि हम डरे थे। तो वो बॉडी रिएक्ट करती है सपने में भी। जब आप हाँ कभी कोई बुरा सपना देखते हो, तो ये जो माइंड होता है ना, इस तरीके से फंक्शन करता है। तो माइंड का जो रोल है वो इतना जबरदस्त रोल प्ले करता है। यदि माइंड को हम आत्मा में मर्ज होकर यदि नहीं जिए ना, तो ये माइंड अपना पूरा खेल चलाता रहता है। माइंड कह देता है मैं ही हूँ, तू नहीं है। वो क्या कहता है, रियल जो ओनर है ना, रियल हाँ। ओनर जो इस बॉडी का है, वो रियल ओनर को तो सामने ही नहीं आने देता। हम्म। किस लिए नहीं आने देता? जैसे एक सन है। अब ये मेरे को बताओ कि जो 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 मून है वो किससे एनर्जी लेता है? जो मून है वो किससे एनर्जी लेता है? हाँ, वो अपने आप से। नहीं, सन से लेता है ना। अच्छा। हाँ, सन से नहीं पता, सन से लेता है ना एनर्जी। नहीं पता, मुझे अब नहीं पता। हाँ, सन से सारे जितने भी प्लेनेट, पूरा जो प्लेनेट में जितने भी स्टार्स है ना, सब सन से मिलती है उनको रोशनी। अच्छा। हाँ, सन से मिलती है। तो अब क्या है, अब सन से उसको मिलती है, लेकिन मून ये कहता है, मून है, ईगो एक तरीके से मून है। मतलब जो मन है ना, मन को ईगो कहा जाता है। तो जो मन हाँ है वो है क्या है, मून है। अब वो ले हाँ तो एनर्जी किससे रही है, मुझसे ले रही है। हाँ लेकिन वो कहती है नहीं, मैं ही हूँ। वो चाहती नहीं कि मैं आऊँ सामने, हाँ क्योंकि मन को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, नहीं तो काम तो मन करना नहीं चाहता। हाँ। तो मन का इतना बड़ा जबरदस्त रोल होता है, वो बॉडी को अपने हिसाब से घुमाना चाहता है। तो अब हमें क्या अच्छा, करना है? हमें क्या करना है? उसको हटाना है, मतलब उसका मतलब भूलना है उसको। उसको हमारे को अपने हिसाब से सोचने को घुमाना नहीं है। है। उसको छोड़ना है ना पकड़ना है। उसको हमें अपने अकॉर्डिंग घुमाना है। हाँ मतलब उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है मन की, कि वो हमारे ऊपर रूल करने लग जाता है, जबकि हमसे ही ले रहा है। हाँ हमसे ही एनर्जी ले रहा है और हम पे रूल कर रहा है। वो रूल कर रहा है ना, क्योंकि वो तो चाहता है हम सोते रहें। हाँ हम सोते रहें, वो अपना काम चलाता रहे। ऐसे चलते हैं हम लोग। ज़्यादातर 99% लोग ऐसे चलते हैं। हाँ। तो बस ये वाला है रूल हर वक़्त। तो ये जो है, अब ये देखो बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट उसने जो है उसके डाल दिया मन ने, जो उसके मन हम्म। में थॉट्स आए।
ठीक है ना? हाँ हाँ। चलो पढ़ो फिर, और पढ़ लो फिर। Text 32 to 35. हम्म। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all of those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them? uh, Even though they might otherwise kill me. O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Text 36. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain? O Krishna, the husband of goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsman? हम्म। Text 40. नहीं, एक मिनट. हाँ, हाँ, text 37 to 38. O Janardhan, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? Text 39. With the destruction of dynasty, the internal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Text 40. When religion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of wrestling, comes unwanted progeny. Text 41. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances of offering them food and water are entirely stopped. Text 42. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Text 43. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by succession that those who destroy family traditions always dwell in hell. Text 44. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. Text 45. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapon in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Text 46. Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. हाँ, तो अब इसमें ना ये लास्ट में जो है संजय ने मतलब उसको जो धृतराष्ट्र से के जो श्लोक पूछने से जो बताया जो संजय ने, तो ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कहाँ पर हाँ बैठे हुए, महल में ही बैठे हुए बता रहे हैं। ठीक है, फार साइटेडनेस आ गई थी ना उसके अंदर, वो उसने दे दी थी ये जो वो थे ना व्यास मुनि थे ना, व्यास जी का मैंने बताया था ना आपको। व्यास जी जो थे, ये जो इनकी जो मत्स्य कन्या से जो शादी हुई थी ना शांतनु की, हाँ. तो उसके बेटे थे व्यास। एक तरीके से व्यास जी जो मतलब व्यास से ऋषि, कन्या की शादी शांतनु से थोड़ी ना हुई थी, भीष्म पितामह से हुई थी ना. नहीं भीष्म पितामह तो ने तो शादी नहीं की थी। अच्छा. शांतनु ने वो जो एक मत्स्य भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे पहले, अच्छा. और जो हाँ. शांतनु ने दूसरी शादी की थी जो मत्स्य कन्या से की थी, तो वो जो उससे दो पुत्र हुए थे, वो धृतराष्ट्र और वो हुए थे। लेकिन अब क्या थे कि ये भी स्टोरी कैसी थी कि ये जो दोनों जो पुत्र हुए थे ना, तो इसमें भी क्या था कि जो जो रियल जो नहीं नहीं ये तो जो उसके वो जो थी ना मत्स्य कन्या थी, ये उसके वो थे, पोते थे ये धृतराष्ट्र और ये धृतराष्ट्र और पांडु।
ये जो अच्छा उसके ये जो व्यास जी जो इनके पुत्र शादी से पहले के पुत्र थे। अच्छा मत्स्य कन्या जो जो शांतनु से जिसने शादी की थी। तो उन्होंने एक बार ऋषि से शादी की थी। ऋषि उसके थे ऋषि पराशर से शादी करी, फिर उसके उसके पुत्र पुत्र बने ये व्यास जी पुत्र का जन्म हुआ था। तो व्यास जी के एक तरीके से व्यास जी को इसने बुलाया था क्योंकि इसके जो दोनों पुत्र थे वो उसमें डेथ हो गई थी। दोनों की वाइफ विधवा थी, विडो थी वो। तो उसने बोला अच्छा कि मेरे को हमें तो संतान चाहिए राज्य चलाने के लिए आगे। तो इसने अपने ही पुत्र को बुला लिया था। तो फिर वो आए तो उन्होंने एज़ अ विटनेस की तरह से ये जो गीता जो लिखी है ना, गीता तो व्यास जी ने लिखी है ये। गीता किसने लिखी है? व्यास ने। व्यास कौन थे? इसके पुत्र थे। किसके? जो मत्स्य कन्या जिसने शांतनु से विवाह करा था, जिसके धृतराष्ट्र और ये धृतराष्ट्र और वो पोते थे, लेकिन जो इसके रियल पुत्र थे दोनों उनकी डेथ हो गई थी। विचित्र वीर्य और और क्या था? एक और था। तो 2 पुत्र थे। ये भी पढ़ोगे ना आप स्टोरी तो तब पता चलती है एक्चुअली ना पर महाभारत की। शांतनु के शांतनु के तो बेटे थे ना वो, पांडु और धृतराष्ट्र। शांतनु के बेटे नहीं थे, पोते थे। अच्छा। हाँ, पोते थे। और फिर उनके 2 बेटे हुए थे, उससे मत्स्य कन्या जो थी ना वो, उसका नाम क्या था? मैं नाम भूल रही हूँ। तो वो जो उससे जो 2 बेटे हुए थे नहीं, उनकी शांतनु के दो बेटे हुए थे ना। 2 बेटे जो हुए थे वो ये नहीं थे, धृतराष्ट्र और ये नहीं थे। अच्छा शांतनु के जो 2 बेटे हुए थे वो विचित्रवीर्य और चित्रकेतु था। 2 थे, 2 पुत्र थे अच्छा अलग। तो उन वो किसी युद्ध-वुद्ध में मर गए थे। मर अच्छा तो उनकी जो दोनों वाइफ विडो रह गई थी। विडो रह अच्छा गई थी तो इन्होंने अपने पुराने पुत्र को बुलाकर उनसे जो है वो संपर्क करवाकर बच्चे पैदा करवाए थे। समझ गए? अच्छा ये आप नेट पे मैं आपको स्टोरी का लिंक भेजूँगी तो उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है? अच्छा आप एक बार पढ़ोगे ना तो तब पता चल जाएगा। तो इसमें ऐसा ये एक्चुअली ये जो स्टोरी जो सारी है ना टोटल है तो महाभारत एक घर की फैमिली की ही और उसको हाँ लिखने वाले भी। तो उसमें कहते हैं कि जैसे आप एक एज़ अ विटनेस की तरह से लिखते हो ना, मतलब जैसे आपकी जो फैमिली जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आप तो विटनेस ही हो ना। जो हाँ कॉन्शियसनेस है वो तो शरीर के अंदर वो रहती है लेकिन शरीर के साथ अटैच नहीं है वो। हाँ वो शरीर को जैसे आप गाड़ी हो, गाड़ी में चल रहे हो तो आप कोई गाड़ी थोड़ी ना बन जाओगे। हाँ तो ऐसे हम अटैच तो नहीं हो हम हैं उसके अंदर लेकिन हम उससे अटैच नहीं है, हम उससे जुड़े नहीं हुए हैं हम हाँ उसके हम उससे अलग है। हम उससे अलग हैं। हाँ, हाँ तो ये जब लेवल आता है तो आप जितनी भी बॉडीज़ हैं, अपनी भी तो उसमें जब आपको अटैचमेंट नहीं होती तो आप उसको एज़ अ विटनेस की तरह देख पाते हैं ना। इसमें ये हाँ चीज़ हो रही है, उसमें जैसे किसी बॉडी को चोट लग रही है, हाँ ऐसे होता है। मुझको नहीं लग रही, उस बॉडी को लग रही है, ऐसे होता है ना। अच्छा तो हाँ उस लेवल पर व्यास जी बैठे थे, उस लेवल पर थे व्यास। तो व्यास ने ये जो महाभारत लिखी है पूरी, महाभारत में से गीता एक छोटा-सा पार्ट है महाभारत का। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निकाला कि तू सही कर्म कर और तू सही कर्म से जैसे जो मैं बता रही थी ना ये चक्रव्यूह जैसे ये बॉडी ही चक्रव्यूह है। अब इस चक्रव्यूह से हम मैं बाहर कैसे निकलूं? तो बाहर मैं कैसे कर्म करूं कि जिससे मैं निकलूं? तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया कि तू इस चक्रव्यूह में से कैसे बाहर निकलेगा कि जिससे तू इस बॉडी में फंसे ना, तू उस बॉडी से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के लिए अब मेरे को हर हर क्षण हर मोमेंट पे मेरे को कैसा चीज एक्ट करना चाहिए। जैसे हाँ हम जो पूजा पाठ ये सब करते हैं ना, ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ है। कुछ भी नहीं करना चाहिए ये सब। अच्छा हमारे सही एक्शन हमारे को इस बॉडी से फ्री कर पाते हैं। अदरवाइज़ अच्छा नहीं तो हम फ्री नहीं हो सकते। फिर हमें बॉडी दोबारा मिल जाती है। उसमें हम अच्छा फिर फँसे रहते हैं बार-बार। तो ये नहीं, पर वो वाला चक्रव्यूह क्या था जो जिसमें अभिमन्यु घुसा था। वो चक्रव्यूह तो ना वो बाहर का जो जिस तरीके से जो बता रहे हैं ना, ये जो कृष्ण ने जो ज्ञान जो अर्जुन को दिया, वो तो चक्रव्यूह वो युद्ध का बता रहे हैं, जो बाहर का। लेकिन है ये इनर, इनर में नहीं, ये बाहर वाला चक्रव्यूह क्या था। जैसे ये है ना नहीं वो तो चक्रव्यूह ऐसा बता रहे हैं कि जैसे बाहर में युद्ध हो रहा है, बाहर में हाँ महाभारत का कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें जैसे पहले कौन घुसेगा और फिर घुस के उसको कौन-कौन रोक लेगा। जैसे सामने वाली सेना बता देगी जैसे बीच में कोई आ गया, घुस गया और उसके चारों तरफ में वो कैसे कैसे उसको चक्रव्यूह को तोड़ेगा, तोड़ के वो अपने आप को बचाएगा कैसे? ये तो फिज़िकल वाली बात हो रही है। लेकिन ये अच्छा फिज़िकल वाली बात नहीं है क्योंकि कृष्ण इसमें जो बीच में आए हैं
ये इसलिए आए हैं कि हम अपने मन के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने अपने आप को पहचाने। मतलब मन के अच्छा। चक्रव्यूह को तोड़कर जिसमें मन में कैद है ना हम, जिस हम्म। मन के उसमें हम कैद हैं, उसमें से निकले हम बाहर। मेन इसका सटल जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो ये है। ये सटल मीनिंग अच्छा। कोई भी नहीं बताता। सब लोग वैसा बताते हैं, ये फिजिकल वाला बताते हैं, ये स्थूल बॉडी की तरह से बताते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है ना, उसके हिसाब से बताते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। इसके इसके मीनिंग हमें ये देखना पड़ता है कि हम बार-बार जो मन के उसमें गुलाम बन जाते हैं, तो उसमें से हम कैसे फ्री हों। अब जो अच्छा। जो बेसिकली अभी कौन फँसा हुआ है चक्रव्यूह में? अभी इसमें कौन फँसा हुआ है चक्रव्यूह में? सबसे अभी इसमें अर्जुन फंसा हुआ है। अर्जुन फँसा हुआ है, तो अब इसको कृष्ण बता रहे हैं कि तो उस चक्रव्यूह, अब किसके चक्रव्यूह में फँसा हुआ है वो? अपने मन के चक्रव्यूह में अपने फँसा हुआ मन है के चक्र में। ना। अब वो तरह-तरह की डेफिनेशन दे रहा है। बेसिकली चक्रव्यूह तो एक फिर ट्रैप हो गया ना। ट्रैप हो गया, और वो किसका ट्रैप हो गया? वो मेरे अपने वो मन का मन का ट्रैप है। ट्रैप, मेरे मन का ट्रैप है वो। मतलब जैसे मन ने मेरी ट्रैप बिछाया है ताकि वो हम अपने रियल सेल्फ को पहचान ना पाए। हाँ, अरे वाह! ये तो ये तो पता है, क्या कहते हैं, मैं जो है ना गिरी, ये तो इतने सारे लोगों को बता चुकी, लेकिन आज तक भी नहीं बोला किसी ने ये वाली बात। अच्छा। ये तो बहुत ही बढ़िया बता दिया तुमने। बस तो तुम्हारे को तो बहुत ही क्लियर है। बस यही है इसका मीनिंग, यही है बार-बार। पर तुम्हें जो तो रियल वाला जो चक्रव्यूह था फिजिकल वाला, तो वो अभी भी है। वो तो वो कुछ मैटर ही नहीं करता ना। वो तो जैसे अब वो कहते हैं हम, जैसे अब आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? आप हाँ। जब वो हैं, कॉन्शियसनेस हैं, और जब बॉडी, तो आप लास्ट उस मूवमेंट तक जो बॉडी की है, बॉडी को किसी ने तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो वो चक्रव्यूह किस चीज़ का हुआ? कुछ भी नहीं है चक्रव्यूह उसमें। चक्रव्यूह क्या है? किसी ने मशीन को तोड़ दिया, आग लगा दी, उसमें उसमें मैटर क्या करती है चीज़? मेन जितना जब हमारा माइंड से जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम हार कर भी जीत जाते हैं ना। हाँ। हम हार के भी जीत जाते हैं। जब एक आत्मा जो चीज़ है जिसको हम मार ही नहीं सकते, हाँ। तो जब हम वो हैं, तो उसमें फिज़िकल में तो फिर हम मैक्सिमम पावर लगा देंगे ना अपनी, मैक्सिमम पावर लगा देंगे, चाहे जीते चाहे हारे, हमारे लिए एक एक तरीके से एक एन्जॉयमेंट ही रहेगा ना, वो भी तो खेल की तरह रहेगा। हाँ। हमारे लिए तो वो दुःख का कारण नहीं है ना कि किसी ने हमको मार दिया, कुछ कर दिया, या हम हार गए किसी से, तो हारे क्या? कौन हारा? मैं थोड़ी ना हारा, बॉडी हारी। हाँ। बॉडी हारी, और किसी की कोई वीक बॉडी है, किसी की कैसी बॉडी है, किसी की कैसी है, तो बॉडी हार गई, या किसी पे थोड़ी छोटी कार है, किसी पे बड़ी कार है, और बड़ी कार थोड़ी-सी जीत गई, छोटी कार, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मैं उस ढंग से ऑपरेट करूँ उस चीज़ को। कई बार होता है बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले भी हार जाते हैं। बड़े आपकी हाँ। फिज़िकल मसल-वसल खूब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप मेंटली वीक हो गए। अब जैसे हाँ। अर्जुन हुआ पड़ा है, अब अर्जुन की शिविर कर रही है ना बॉडी, तो अच्छी हाँ। बॉडी भी क्या करेगी जब आपका माइंड ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो? हाँ। वहीं हार गए ना आप। और हम्म। जिसका माइंड अपने कंट्रोल में है, तो वो हार के भी जीत जाता है। हाँ। बस, जब आपको अपना रियल सेल्फ आपकी पता ही है अपनी, तो फिर आप हार के भी जीत गए ना, आप तो वैसे ही जीत गए ना, आप हमेशा ही जीते हुए ही हैं। जब माइंड आपके कंट्रोल में है, और जब आपके माइंड आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप जीत कर भी हार जाते हैं। जीत कर भी हाँ। हार जाते हैं ना, तो ये चीज़ होती है। ये है गीता का मेन। तो ये आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। तो उसमें जो है, हाँ। बस अब संजय ने उनको ना, ये अर्जुन की जो मेंटल जो उसकी हालत चल रही है ना, तो वो चीज़ उसको धृतराष्ट्र को बताई है उन्होंने बेसिकली। तो जो वो थे, जो ऋषि थे, उन्होंने पूरा भी तो लिखा होगा ना। महाभारत पूरी भी तो लिखी होगी। हाँ, पूरी देखिए ना, और क्या पूरी लिखी हुई है। महाभारत के तो बहुत सारे पार्ट हैं। ये तो गीता तो 45 मिनट्स जो है, जब युद्ध में जब पार्टिसिपेट हो रहा था, तो उस हम्म। समय जब उसने बीच में रथ लेके गए ना, तो तब हाँ। जो जाके जब वो शिविर करने लगा, तो तब हम्म। उन्होंने रोक के उसको, रथ को रोक के, तो उन्होंने युद्ध शुरू ही नहीं करने दिया जब तक वो सेंटर पे नहीं आया अपने, अर्जुन। अच्छा। तो ये गाइड करी, अच्छा। मतलब एक अच्छे उसने रियल फ्रेंड ने अपने अपने उसकी फ्रेंड की हेल्प करी। अब क्या है, वो गलत सेंटर से यदि ऑपरेट करता, वो भाग जाता, सपोज करो वो भाग जाता, जैसे शिवर कर रहा था, वो कह रहा था मैं अपने को क्यों मारूं, तो अब वो जो दुर्योधन है, दुर्योधन जो गलत आदमी है, वो बन जाता राजा। हाँ। गलत जो पहले उसका हड़प रहा है, फिर बाद में प्रजा भी तो सारी दुखी थी ना। उस समय जब हम्म। किंग जब वो करता था, रूल करता था, तो उस समय किंग भी तो अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो वो हाँ। अपनी पब्लिक को खुश रख पाएगा।
हाँ, अब वो सब दुखी होंगे, तो इस प्रकार से जैसे ये जो चीज़ें आती हैं, तो हमें सही उसको फ़ॉलो वो करना चाहिए। ये नहीं कि राज्य के लालच में मैं ले लूँ या वैसे ले लूँ, लेकिन वो उस समय उसका दुर्योधन का राज्य राजा बनना ही ठीक नहीं था, क्योंकि वो आदमी मनुष्य ही गलत था। अब उस समय में जो वो होती थी ना, जो हमारी जो सारी जो पब्लिक होती थी, तो वो सारी एक बच्चे की तरह से होती थी, पहले के टाइम में। अच्छा। राजा को ख़्याल रखना पड़ता था ना अपनी उसका, कोई कहाँ पर हुँ, क्या कमी है, कुछ है, तो वो सब चीज़ें जो राजा को देखनी होती थी। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट देखती है ना हमारे कि सड़कें खराब हैं, कुछ है, तो ऐसे करके लेती है ना, वो हमसे पब्लिक से टैक्स लेती है, फिर हाँ, करती है सारा कुछ। तो उस समय में राजा करते थे ये सब, अच्छा। राजा लोग करते थे। तो उस समय हुँ, ऐसा होता था। ठीक है ना? तो हुँ। लेकिन काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है, बहुत ही बढ़िया रहा। है ना? ठीक है? तो पर ये तो गीता है ना, तो गीता के और भी तो वो होंगे, मतलब जैसे पूरी महाभारत है, गीता उसका एक पार्ट है, हाँ। तो इसके और भी तो पार्ट्स होंगे, मतलब गीता के अलावा। गीता के अलावा पार्ट जो हैं वो सारे महाभारत के हैं ना, कि महाभारत में जो-जो चीज़ें, घटनाएँ जो घटी हैं ना, जो हाँ, तो इंसिडेंट घटे उनका हैं, उनके ऊपर भी तो बुक लिखी हुई होगी, उनका नाम क्या है? महाभारत है, महाभारत के पार्ट्स हैं ना, तो महाभारत का 1 पार्ट, 2 पार्ट ऐसे होंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे पार्ट हैं, तो उसमें हाँ, वो पूरा है वो भी। हाँ, ठीक ठीक कह रहे हो, वो भी पूरा है, नेट पे से मिल सकता है वो। अच्छा, लेकिन उसमें तो युद्ध का ही बताया होगा ना, जैसे प्लान करा। अब जैसे अच्छा। उसका होना है, हाँ, सपोज़ करो, उसमें तो मतलब युद्ध के बारे में बताया होगा ना? जैसे अभी भीष्म पितामह को मारना है उसको, अर्जुन को, आप सपोज़ करो। हाँ, जैसे भीष्म पितामह को मारना है, तो उसकी तो इन्होंने प्लानिंग क्या प्लान स्ट्रैटेजी, बनाया? उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करी जाएगी ना पहले दिन। हाँ, तो स्ट्रैटेजी में अब फिर उसके हाथ-पैर काँपेंगे। तो हाँ, वो कहेगा ये तो मेरा दादा था, अब मैं इसको क्यों मारूँ? फिर पहले तो उसको उसको मनाना पड़ेगा, अर्जुन हाँ, को। हाँ, तो वो भगवान कृष्ण उसको कहेंगे कि भई कि तू मान जा, कैसे कैसे मानेंगे? तो फिर वो उसकी भी, हर किसी की मृत्यु का जो है ना कोई एक कारण होता है। कॉज़ होता है ना, कॉज़ एंड इफेक्ट से चलता है ना हमारे कर्म। कॉज़ हाँ, होता है, कारण होता है, और फिर इफ़ेक्ट होता है उसका। तो हर किसी की मृत्यु का कोई न कोई कारण तो होना है। मृत्यु मतलब बॉडी की जो मृत्यु होनी है। तो सबका कोई न कोई कारण बनेगा, किसी की एक्सीडेंट से होनी है, किसी की लाइफ़ पूरी हो जाती है, कार हाँ, रिटायरमेंट वाली उस पे आ जाती है, तो हो जाती है। तो ऐसे मृत्यु के हर हर किसी के कॉज़ एंड इफ़ेक्ट हैं। तो अब ये जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट से जो जुड़ी है बॉडी, वो पुराने उससे जुड़ी हुई है हमारी। जो पुराने प्रीवियस बर्थ में हम क्या-क्या करके आए हैं, तो अब हमारी किस कारण मृत्यु होगी, ये चीज़ पहले से डेस्टिन्ड है। हाँ, डेस्टिन्ड है ये पहले से। अच्छा, हम उसको को इवन चाहे हम कॉन्शसनेस वाले लेवल पर हम चाहे इस बॉडी को अब ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उससे बंधी हुई है, उसमें फ्री नहीं है, क्योंकि कर्मिक अकाउंट से बॉन्डेज मिली हुई है ना हमें। हाँ, तो अब ये बॉडी किस तरीके से जाएगी, ये पहले से डेस्टिन्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज। हम हाँ, जो नए जो कर्मास बनाते हैं, तो नए कर्मा जो है हमारी डेस्टिनी और आगे लिखते हैं, लेकिन हमारी पुरानी डेस्टिनी को चेंज करने की किसी में भी पावर नहीं है। अच्छा, डेस्टिनी चेंज नहीं की जा सकती। उसको ख़त्म करके, भुगत के ख़त्म करके किया जाता है, कि ताकि हम और ऐसे ख़राब ना करें, जिस कारण हमारे को ये बॉडी ख़राब मिली है। मतलब कि जैसे अगर मैंने अब अच्छे कर्म कर दिए और मेरे कोई बुरे कर्म नहीं रहे, तो मेरा अभी एक और बार जन्म होगा जब तक मेरे पहले के कर्मिक अकाउंट सेटल नहीं हो जाते। पहले के कर्म सेटल नहीं हो जाते, वो तो चलेगा। आपकी बॉडी कम मिली है, ज़्यादा मिली है, वो आपके पुराने कर्मिक अकाउंट से मिली है। लेकिन अब इस समय में यदि मैं ज़ीरो वाले जब कर्म करती हूँ, तो ज़ीरो में फिर मैं आगे बॉडी नहीं बनाती। ये लेकिन ये आपकी इच्छा है कि मैं दोबारा आऊँ, तो उसमें फिर बेटर कर्म करो। अच्छा, हाँ, बेटर कर्म मतलब सही कर्म करो, किसी का लो मत, किसी का वैसा नहीं, मतलब प्योर कर्म करो, प्योर। हाँ, ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो फिर वो आपका अकाउंट क्या होता है, डेबिट की तरफ पर जाता चला जाएगा। मतलब आपका जैसे जो वो है, तो आपको बड़ी सुंदर बॉडी मिलेगी, बड़ा सुंदर सब कुछ मिलेगा, ऐसा सब कुछ मिलता है, इस तरीके से। वो सब चीज़ें हमारे उससे होती है। लेकिन यदि बॉडी से ही मुक्ति चाहिए, बॉडी चाहिए ही नहीं, अब आप कॉन्शसनेस में अपने पूरे कंप्लीट हो, आपको दोबारा में आना ही नहीं, क्योंकि क्या है कि अब जैसे सुंदर भी मिलेगा, लेकिन जब कभी जाएगी बॉडी, तो उस समय तो दर्द होए तो होता ही है ना। हाँ, बॉडी जब छूटती है तब तो दर्द, तो आदमी कहता है मैं दोबारा लूँ ही क्यों इसको, ये जब बॉडी, इसमें बीमारी भी आती है, सुंदर भी बॉडी है, लेकिन फिर भी उसमें कभी-कभी तो बीमार होता ही है इंसान। कभी-कभी हाँ, कुछ होता है, तो ये सब चीज़ों से भी जब इंसान बिल्कुल मतलब थक जाता है, तो फिर वो कहता है मैं बॉडी ना लूँ। तो फिर वो उस लेवल पर कर्म करना पड़ता है हमें, जहाँ पर हम कॉन्शसनेस वाले पे, तो हम उसमें
हम पर अपने कर्मों के अगर मेरे जो पुराने वाले जो कर्मिक अकाउंट्स है मैं आगे के कर्मिक अकाउंट्स ना बनाऊं, अच्छे बनाऊं। अच्छे बनाओ। हाँ, तो मतलब ना ही बनाऊं, मतलब जीरो लेवल पे ऑपरेट करूं। तो मेरा जो दूसरा जन्म होगा उसके अंदर भी तो फिर मतलब दूसरे कर्म भी तो करूंगा ना मैं। उस वाले जन्म के अंदर मुझे नॉलेज नहीं रहेगी ना इतनी कि मैं वो मतलब मेरे अंदर चेतना है, ये है वो है। नहीं नहीं, वो रहेगी। वो तो जितनी नॉलेज आपने इस उसमें ले ली, क्योंकि चेतना तो वही है ना जिसने ली है। अच्छा, तो हाँ, मतलब अगले वो जन्म नॉलेज तक ये रहेगी। वो भूलती थोड़ी ना है। अच्छा। वो भूलती नहीं है। वो तो अच्छा। यदि आपने जितनी नॉलेज ले ली, जितने आप हो गए, तो वो तो आपकी वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है ना, मन तो पूरा। अच्छा, हाँ, वो ट्रांसफर हो जाता है, बॉडी दूसरी में दूसरी बन जाती है, दूसरी बॉडी का कुछ तो मतलब ट्रांसफर मैं नहीं। भूलूंगा नहीं मेरा पिछला जन्म। ना, कुछ नहीं भूलता। भूलता थोड़ी ना है कुछ भी, सब याद रहता है। वो तो बता अच्छा। नहीं पाता, क्योंकि बच्चा होता है ना, बच्चा होता है, बड़ा होता है, जो धीरे धीरे जो अंदर जो जब वो दोबारा जो जब जन्म होता है, तो हम दोबारा में वो चीजें हमारे को हम जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं ना। जैसे ही जो हाँ। चीज आपने पढ़ ली, सब कुछ सीख लिया आपने, डाइजेस्ट हो गई। जैसे फायर जलाती है, तो ये आपने सीख लिया। तो अब दोबारा हाँ। दोबारा थोड़ी ना सीखना पड़ता है आपको, डाइजेस्ट कर लिया आपने। जो चीज हाँ। डाइजेस्ट कर लिया आपने, वो आपकी अपनी हो गई। अच्छा, ऐसे होता है, ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट। पर तब भी रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, रिवाइज भी नहीं करना पड़ता। वो ना भगवान ने ऐसा दिया है कि ये जो जन्म मृत्यु का ना, जैसे हम दूसरी बॉडी में देते हैं ना, तो सुप्रीम पावर तो है ही ना। सुप्रीम हाँ। पावर में हमें मर्ज होना है। तो मर्ज होना अच्छा। है, तो सुप्रीम पावर इस चीज को टेक केयर करती है। वो दोबारा में आपको वो चीज याद दिला देती है ना, वो वापस आ जाती है आपकी। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होता, नहीं होती। ये तो जो आप जैसे अब अच्छे कर्म बनाते हो, कुछ करते हो, तो वो तो नेक्स्ट बर्थ में आपके ट्रांसफर होंगे ही होंगे, 100%। अच्छा। वो चीज से तो उस पे तो ना लॉ ऑफ नेचर काम करता है ना। अच्छा। नेचर का लॉ काम करता है उस पे। लॉ होता है ना। वो अच्छा। तो जो चीज आपकी हो गई ना। तो अच्छा। लेकिन आपका क्या चीज है ना, आपकी कॉन्शियसनेस है ना सिर्फ। बाकी हाँ। नेचर ने ये जो बॉडी दी है, इसको बॉडी को आपको यूज करना है। तो यदि आप हम्म। दोबारा भी ये चाह रहे हो, तो आपने अच्छे उसमें कर्म किया है। आपका कोई मोटिव है कि अब दोबारा लोगे तो मैं जो है क्या करना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो वो भी जो नेचर है, वो ये डिजायर हमारी पूरी करती है। अच्छा। नेचर हमारी मदर है ना। रियल मदर हमारी नेचर है। ओ। वो पूरी करती है जो डिजायर आपके अंदर रह जाती है। वो डिजायर सीड बनकर नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। और वो फिर पूरी होती है। वो पूरी होती है। डिजायर के कारण ही तो हम अभी भी हैं। हमने चूज करा है कि ये हमारे माँ बाप हों। हमें अच्छा। हमें पता नहीं है, लेकिन हमने चूज किया है। चूज किया है, इसीलिए प्रकृति ने हमें उस घर में जन्म दिया है। अच्छा। हाँ, ऐसे होता है। तो ये नेचर का होता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको हम्म। और समझ में वैसे तो बहुत जल्दी आपकी तो मतलब बहुत जबरदस्त पावर है पकड़ने की, क्योंकि इनोसेंट हो ना अभी, तो इनोसेंस में सब कुछ जा रहा है। बल्कि ये जो थोड़ा सा ज्यादा वैसे एज वाले जो लोग होते हैं ना, वो बल्कि नहीं समझ पाते। अच्छा। हाँ, उनकी क्या होता है ना, कंडीशनिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है, कंडीशनिंग इतनी पत्थर की तरह से जम जाती है, वो पहचान ही नहीं पाते अपनी कॉन्शियसनेस को। वो टोटल अच्छा। जो है माइंड के अंदर जो है वो हो जाते हैं, स्लेव हो जाते हैं। और हाँ। फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे वो बता रहे हैं ना इसमें, श्राद्ध करना, ये सब करना, वो कह रहे हैं ना कि ये श्राद्ध कौन करेगा, वो कौन करेगा, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं उनसे। अब ये हाँ। सब चीजों का वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे उसमें श्राद्ध का मतलब क्या होता है। श्राद्ध का मतलब होता है कि पुराना जो मूवमेंट है उसमें मैं कुछ भी सोचूंगी नहीं। अब ये हाँ। फ्रेश मूवमेंट आया है, फ्रेश मूवमेंट में मैं फ्रेश काम करूंगी। हाँ। पुराना मूवमेंट के साथ में नहीं करूंगी ना, कि अब पुराने मूवमेंट में किसी ने मेरे को कोई गाली दे दी तो मैं अब सोचूं कि वो तो बुरा ही था। ऐसा नहीं ना, अब ये नया फ्रेश मूवमेंट है, मैं नया एक्ट करना है मुझे। मैं पुराने हाँ। विचार से अपने टाइम को क्यों खराब करूंगी अभी करंट वाले को। हाँ। तो ये चीज होती है, श्राद्ध का मतलब ये चीज है। हाँ। अब हम क्या करते हैं कि जो अब हमारे उसका जो एग्जाम्पल भी है, उसका एग्जाम्पल भी है। क्या एग्जाम्पल क्या। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास 2400 है, उसमें से मेरे कोई 100 चुरा लेता है, तो मैं अपने 2300 में आग थोड़ा ना लगाऊंगा।